Probably we were here. So we were talking about the motivation for cascade and parallel structures, and as your friend was saying that in direct form 1 and direct form 2 we are implementing the polynomials directly, the coefficients of the polynomials. Like this is a polynomial, so we are implementing this 1, 2 and this 1 in our direct form 1 and direct form 2 structures, and these 1 minus 0.75 and 0.125, and of course these are associated with the location of zeros and poles, because the roots of this numerator will be the location of the zeros, and the roots of these poles, this denominator will be the location of the poles. And we also talked about that using fundamental theorem of algebra, we conclude that finding the roots is an ill-conditioned problem. If we have some problem in representing these numbers, in that case the roots will be shuffled, and as this and the degree of the polynomial in the numerator and denominator is increased, suppose it's a 10th order filter, the effect on the location of the zeros and the effect on the location of the poles will be higher as compared to the second order polynomial. So that was the main reason that we are moving towards cascade and parallel realization. Now the question is, from where these perturbations are coming? And the answer to that is that in digital systems we have to represent these in bits. So either we're using 8 bits or 16 bits or 32 bits. So बेटा आप अपना माइक अगर किसी का खुला है तो वो प्लीज बंद कर दें. So these finite Precession effects are creating perturbations in these numbers, in these coefficients. So that's the reason we are moving towards cascade and parallel realizations. Any questions, any confusions, please ask. ओके अगर तो हमारे पास पोलिनोमियल डिग्री सेकंड ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा, like alpha z square plus beta z plus gamma, this is a polynomial of degree 2 because z की अगर polynomial में हम देखें तो z square की term appear हो रही है, so that's a polynomial of degree 2. So in that case the possibility ये है कि इसके अंदर इसके दो roots हैं, everyone knows इसके दो roots हैं. So अगर alpha, beta और gamma जो हैं ये तीनों real हैं तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि या तो इसके अंदर दो रियल रूट्स होंगे या फिर पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट होगा. अगर मेरे पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, लाइक इट इज अल्फा जी क्यूब प्लस बीटा जी स्क्वायर प्लस गामा जी प्लस डेल्टा, और and all these alpha, beta, gamma and delta are real, then the restrictions are that either we are having 3 real roots or we are having 1 real root plus a pair of complex conjugate. इसी तरह से if we have a polynomial of degree 4, in that case we will be having, and we are having all the real coefficients, in that case we will be having four real roots or 2 real roots plus 1 complex conjugate pair, या ये possibility हो सकती है that we will be having 2 complex conjugate pairs. So in general अगर मेरे पास odd degree है polynomials की तो we will be having at least 1 real root, और इवन डिग्री पोलिनोमियल में हमारे ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है. एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? सो सर इवन के ऊपर वो आप बता दें, लास्ट लाइन जो है थोड़ी सी. जी बोलिए. आपने लिखा है ना कि इवन डिग्री पे नो सच रूट्स. नो सच रूट्स नहीं, नो सच रिस्ट्रिक्शन है सर. यानी जब हमारे पास लेट्स सपोज पावर 4 है तो इस पे जरूरी तो नहीं है कि सब के सब रियल्स हों.
इसमें कॉम्प्लेक्स ये भी तो आ सकता देखे ना, इसमें 4 रियल रूट्स आ सकते हैं। ये 4 जो है ये इवन है ना, पॉलिनोमियल की डिग्री इवन है ना, है। यस सर। तो इसमें 4 रियल भी हो सकते हैं, 2 रियल भी हो सकते हैं, और उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर भी हो सकता है, या 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स भी हो सकते हैं ना। यस सर। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये था कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा, लेकिन अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर इवन है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसमें एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा। यस सर। अगर ये सिचुएशन है तो एटलीस्ट 1 रियल रूट नहीं है ना। यस सर। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पीछे चले जाते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर 2 है तो पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, तो इसके ऊपर तो कोई रियल रूट तो नहीं है ना। यस सर। ठीक है, गॉट इट। यस सर। ओके, अच्छा जी। Now that's the generalized expression for our transfer function h of z is equal to k is equal to 0 to n b k z minus k, which is associated with the polynomial जो कि zeros के साथ associated है, and 1 minus k is equal to 1 to m a k z minus k, and you can uh, convert this equation into difference equation as well. कोई problem नहीं है, because you have been watching this expression for last 6-7 weeks. Now any polynomial with real coefficients, किसी एक पोलिनोमियल को अगर हम उठाएं, कैन बी फैक्टराइज्ड एज, किसी भी पोलिनोमियल को हम अगर उठाएं तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज पी ऑफ जी हमने उठाया ऊपर वाले इसके न्यूमरेटर को, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, और दिस इज इन लाइट टू ऑल दिस व्हाट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। हमारे पास रियल रूट्स होंगे, दीज आर माय रियल रूट्स एंड दीज आर माय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट pairs. So 1 minus ck z inverse, and there might be some real roots and some complex conjugate pairs. So इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहूँ तो that would be equal to a is some constant, k is equal to 1 to n1, n1 is the real roots, 1 minus fk z inverse, so fk is the location of the zero, real zero, and k is equal to 1 to n2. n2 is the number of complex conjugate pairs, and 1 minus gk z inverse, 1 minus gk conjugate z inverse. So gk and gk conjugate are the location of the zeros. Similarly, in the denominator, k is equal to 1 to m, where m is the number of real poles, 1 minus ck z inverse, where ck is the location of the real zero, and k is equal to 1 to m2, 1 minus dk z inverse into 1 minus dk conjugate z inverse, where dk and dk conjugate are the location of the poles. complex conjugate pair जो poles का है वो dk और dk conjugate पे पड़ा हुआ है. So total number of zeros जो हैं वो n1 plus 2 n2 है. n1 is the real zeros and n2 is the complex conjugate pair, that's why it's multiplied with 2. And similarly m जो है वो आपका, where m is the number of poles, real and complex. So m1 plus 2 m2. Any questions regarding this slide? सर ये n और m आपने किस तरह डिफाइन किया है लास्ट में? किस तरह डिफाइन किया, यहां से लिया है बेटा, इस एक्सप्रेशन से लिया। दिस आर रियल, दिस n1 इज द रियल पोर्शन के लिए हमने लिमिट डिफाइन की हुई है। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर सपोज एक रियल रूट है तो f के ये k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, n1 1 रहेगा, n माइनस एफ के जी इनवर्स, एंड दैट वुड बी द रियल जीरो। और इसी तरह से अगर मेरे पास सपोज फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट है तो n1 1 हो जाएगा और n2 जो है वो 2 हो जाएगा, बिकॉज वी विल बी हैविंग टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स, k इज इक्वल टू 1 to 2। पहला के लिए 1 माइनस जी के जी इनवर्स, 1 माइनस g1 जी इनवर्स, 1 माइनस g1 कॉन्जुगेट जी इनवर्स, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे 1 माइनस g2 जी इनवर्स, 1 माइनस g2 कॉन्जुगेट जी इनवर्स। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट n1 1 है और n2 2 है, तो आपके पास नंबर ऑफ पोल जीरोस जो हैं वो 5 हो जाएंगे। Have I answered your question? Yes, sir.
So why we are saying that अगर मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन इस तरह से हो 1 माइनस डी के जी इनवर्स और 1 माइनस डी के कॉन्जुगेट जी इनवर्स एंड सपोज डी के जो है वो आर एक्सपोनेंशियल जे थीटा है और डी के कॉन्जुगेट जो है वो आर एक्सपोनेंशियल माइनस जे थीटा है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर को, तो एच एफ जी जो है उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रियल हो जाते हैं. वी हैव बीन टॉकिंग दिस सो मेनी टाइम्स बट दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट. So 1 minus r exponential j theta z inverse, 1 minus r exponential minus j theta z inverse. Just locations dk की locations जो हैं वो place की गई हैं इन दोनों जगहों पे, r exponential j theta और r exponential minus j theta. And what is r exponential j theta? You are aware of it. We have been looking at this so many times. So ये अगर मेरे पास suppose 0 है और ये 0 है, तो ये वाला 0 जो है ये r exponential j theta पे पड़ा हुआ है because it's a positive side theta, or this one is located at r exponential minus j theta पे because theta जो है यहाँ पे negative है. And then when you will be multiplying it, so it's 1 minus r exponential j theta z inverse minus r exponential j theta z inverse plus r square. When both of these are exponential j theta z inverse and r exponential minus j theta z inverse will be multiplied, you will be getting r square z minus 2, because the exponential j theta multiplied with exponential minus j theta will be equal to 1. And finally you will be getting 1 minus r exponential j theta plus r exponential minus j theta with z inverse plus r square z minus 2, and this you know that it is 2r cosine theta. So it is 1 minus 2r cosine theta plus r square. This is my b naught, this is my b1, this is my b2. So all these terms b naught, b1 and b2 are real. So that's why we want that our complex zeros should be in the form of pairs. So whenever we will be having the pairs, our difference equation or transfer function coefficients will be real. So that's what we need in our difference equation for implementation. अगर मेरे पास ये situation हो, सिर्फ r exponential j theta हो, तो वी नो के इस केस में मेरे पास कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हैं वो मौजूद होंगी. एक्सपोनेंशियल जे थीटा वाली टर्म्स जो हैं मेरे ट्रांसफर फंक्शन में मौजूद रहेंगी, व्हिच आई डोंट वांट इन इम्प्लीमेंटेशन. एग्रीड? यस सर. Okay, so that's the crux of our cascade system, that you have HFZ, which was of possibly 10th order system, and you have split it into K subsystems. So HK of Z is the subsystem. Suppose K is equal to 5. So in that case, we are splitting our system into second order subsections. Now the question may be that why not we haven't we have split it into first order subsections. The problem here may be that we have complex conjugate roots, so that's why we don't have any other option to make the second order subsection, because second order subsection will be keeping us will be giving us these real coefficients. क्योंकि अगर मैं second order के लिए नहीं जाता और first order के लिए चला जाता हूँ, in that case I will be having complex coefficients in my equation. So that's in order to avoid that, I will be having second order subsections. So this is one option कि अगर मेरे पास सारे के सारे roots जो हैं वो complex हैं, तो I will be splitting my subsystems as second order, 5 second order subsystems, and all these systems are cascaded. So again the motivation was कि यहाँ पे मेरे पास 10th order का system था, and of course the perturbations, as we have talked about, perturbations in the coefficients of the 10th order polynomial will affect the poles and zeros much as compared to the perturbations in the second order. जो coefficients हैं उनके coefficients की जो perturbations, उनकी जो placement of the zeros and poles है, उनको कम effect जो है वो करेगा. And if possibly we have all real roots, in that case we can do like this. We can have 10 subsystems which are all first order systems, and there is a possibility that we have some real roots, as we have talked about earlier,
कि कुछ रियल रूट्स हैं और कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, तो इन दैट केस वी विल बी गोइंग और वी विल बी हैविंग अ मर्जर ऑफ सब सिस्टम्स with some of the systems will be first order and some of the systems will be second order. Questions please. सर लेट्स सपोज अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में तो हम ये फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन तो नहीं कर सकते ना, उसमें तो फिर हमें सेकंड ऑर्डर जो है सब सेक्शन करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही। यस सही। सपोज अगर इसी को देख लेते हैं, अगर मैं कहता हूं मेरा HFZ जो है, सपोज HFZ इज थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, एक जो है मेरे पास ऑड अगर सिस्टम हो तो क्या होता है, एक तो रियल रूट होता है और एक पॉसिबिलिटी है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर। इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, एक एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, और ये जो है ये सेकंड ऑर्डर है, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है x ऑफ n एंड y ऑफ n, एंड ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है थर्ड ऑर्डर के लिए कि h1 ऑफ z, h2 ऑफ z एंड h3 of z. This is x of n, this is my y of n, and all these systems are first order. थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल था ना HFZ में, तो इसकी वजह से ये पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती है। ठीक है बच्चा? यस सर। अच्छा जी, नाउ दैट्स द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, सेकंड ऑर्डर का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास ये है। सो यू हैव बीन वाचिंग इट, इट्स लाइक बी नॉट, ये जस्ट सब सेक्शंस के हिसाब से इसको किया गया है कि जब हम बात करते हैं वी आर ब्रेकिंग इट इनटू HK of Z, तो HK of Z कैन बी सेकंड ऑर्डर एंड कैन बी फर्स्ट ऑर्डर। तो जनरलाइज्ड ब्लूप्रिंट जो है HK of Z का वो ये है। सो HK of Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस B1K of Z इनवर्स प्लस B2K Z माइनस 2। अगर तो मेरे पास सेकंड ऑर्डर टर्म्स मौजूद हैं तो ये Z माइनस 2 वाली टर्म्स रहेंगी, अदरवाइज ये B1 प्लस B1K Z इनवर्स 1 माइनस अल्फा 1K Z इनवर्स एंड दीज टू विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर सब सेक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, एंड यू नो दैट दिस इज द सेकंड डायरेक्ट फ्रॉम टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम, दैट वी हैव टू डिलेज, alpha 1k and alpha 2k are the poles of the systems, and beta 1k and beta 2k are the zeros of the systems, which are representing the feed forward, and poles are representing the feedback component in this direct from two structures. Questions please? No sir. Okay, so that's the situation. If we have all the first order components, so that was my transfer function, any generalized transfer function k is equal to 0 to m and 1 minus k is equal to 1 to n a of k. So bk and ak are the coefficients you know, and we are not going to implement it in direct form 1 or direct form 2, so we are breaking it into first order subsections. We had the options of tamam agar real roots hain to we can do like this. So there will be m real zeros and n real poles. So all these subsections can be implemented in this form, and you can see that ये जो नीचे वाला portion है that has been removed because first order subsection से तो आपके पास वो जो second delay है वो element जो है वो नहीं है। So अगर आपको ये चीज ज़हन में हो, ये equation और उसके साथ उसकी implementation, तो cascade और parallel structure जो है it's a duck shoot, कोई इसमें मसले वाली चीज नहीं है। All you have to do just get the roots of the system and implement it using first order or second order subsections. And this is the generalized structures which we have already talked about, that this transfer function, if we may have number of real and complex zeros and number of real
real and complex poles, in that case that's the generalized expression. And we have also talked about the generic second order polynomial for h of z, ये जो हमने डिस्कस किया है, this one 1 plus beta 1 kz inverse plus beta 2 kz minus 2. Here beta naught, beta की जगह पे b naught आया हुआ है, and b naught के ज़्यादा generalized है as compared to 1. Got it beta? Yes sir. Okay जी, इसको मिटा देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इसको This is an example. Actually, क्या है जी आपका इसमें हमारे पास ये एक सिस्टम है. अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप इसको देखें और आपके अगर मैं चाहूँ कि आप इसे डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 में कन्वर्ट करना चाहें तो पहला काम क्या होगा? हमजा मुबशिर, क्या करेंगे आप? सर मल्टीप्लाई कर देंगे जी, आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, आप पोलिनोमियल की फॉर्म में ले आएंगे. इस वक्त ये अभी भी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं है, तो आप इसको h of z will be equal to 1 minus z minus 1 और फिर आप मल्टीप्लाई करें. इट इज 1 plus z inverse plus 0.5 z minus 2 plus 0.5 z inverse plus 0.5 z minus 2 and plus 0.25 z minus 3. So इसको add up कर लें, 1 minus z inverse, and that would be 1 plus 1.5 z inverse, this one, and 0.5 z minus 2 plus 0.5 z minus 2, that would be plus z minus 2 and plus 0.25 z minus 2. अब अगर मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर बनाना है तो it's no problem, it's 0 raised to minus 3 है. So किस तरह से बनाएंगे अगर डायरेक्ट फॉर्म 2 के लिए जाते हैं? So I will be having 3 delay elements and okay, so this is my x of n, this is my y of n, these are my 3 delay elements. Because the degree of the polynomial is 3 and the coefficients will be it is 1 minus 1.5 as we are taking directly from the transfer function coefficients, minus 1 minus 0.25, and here it is 1 and minus 1. So this is direct form 2 representation of the system. कितने डिले एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं? 3 डिले एलिमेंट्स यूज किए. ठीक है जी, ठीक है बच्चा? यस सर. Yes sir. Okay, and now I am interested in making the cascade structure. So cascade structure के लिए अगर मैं जाऊं तो I have in fact 2 options. पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं अपना ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कहता हूँ this is my h1 of z and this one ये जो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है पोर्शन this is my h2 of z. So that would be the situation. h1 of z, h2 of z. और किस तरह से ये स्ट्रक्चर मेरा बनेगा? So फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शन है तो इट्स इजी, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर बना लीजिए. That's my first order subsection. एक डिले एलिमेंट है. Okay, 1 minus z inverse, these are my zeros, so 1 minus 1 and 1 minus 0.5.
एंड द सेकंड ऑर्डर सबसेक्शन अगर मुझे बनाना है तो क्योंकि उसके अंदर जीरो है ही नहीं, इट इज लाइक 1 ओवर समथिंग, सो इस केस में मेरे पास that's my system, second order subsystem. This is 1 minus 1 minus 0.5. Any confusion, any question? No sir. And there was other option as well कि अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेरा सेकेंड ऑर्डर सबसेक्शन है and this is alone, both of these systems can be used, so in that case my system will be इसको मैं मिटा देता हूँ, so इस केस में मेरा जो स्ट्रक्चर होगा that will be, so सबसे पहले आपने पोल सेकेंड ऑर्डर सबसेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शन पोल वाला आप वो इम्प्लीमेंट कर लें और फिर उसके बाद okay. So this is my x of n, this is y of n. Okay. हैं? Seriously? रात तक तो मस्त था बगैर इंटरव्यू। Thank you, बेटा। वन minus 0.5 और अब इस सेक्शन को this is h1 of z, this is just implementing 1 over 1 plus 0.5 z inverse, and when we are talking about this section which is highlighted in red or encircled in red, in that case the 0 is 1 and minus 1, and that would be 1 minus 1 and minus 0.5. So that's रेड जो है वो रेड एनसर्कल्ड के साथ एसोसिएटेड है और ये जो ब्लैक है वो ब्लैक के साथ एनसर्कल्ड है, एंड दैट्स योर डायरेक्ट फॉर्म 2, दैट्स कैस्केडेड एंड दैट्स कैस्केडेड। क्वेश्चंस प्लीज। सर ये जो आपने सेकंड वाला रेड वाला से जो प्लॉट किया है, इसमें अगर लेट्स सपोज हम h2 of z को अगर हम पहले ड्रॉ कर दें तो इससे कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं। You can call it as h1 of z and the second one as h2 of z, no problems. Yes sir. So यहाँ पे मैं z इनवर्स प्लॉट करने वाला हूँ। ठीक है जी, किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक ही शख्स हैं जो बैठे हुए हैं इस क्लास में, हमजा मुबश्शिर। नो प्रॉब्लम सर। महरे ताबा। सर मेरे एक कंफ्यूजन है कि इसमें भी हम एक तरीके से कोफिशिएंट ही प्लॉट कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो है इस ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर में कोई एक फैक्टर ना होता तो वो भी कोफिशिएंट्स ही होते, तो ये डायरेक्ट फॉर्म भी बन जाती। ये डायरेक्ट फॉर्म ही है एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आपने पूछा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, आप कहते हैं कि आप यहाँ पे भी तो यही कोएफिशिएंट्स ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर 1 है, माइनस 0.5 है, और फाइनाइट प्रेसियन इफेक्ट्स जो हैं वो इधर भी मौजूद हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्म 1, ये डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर है, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट फॉर्म 2 स्ट्रक्चर है। एंड व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट फॉर्म 2? बिकॉज वी डोंट हैव ऑप्शन के फर्स्ट ऑर्डर में जाएं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। दैट्स द मिनिमम वी कैन डू कि हम सेकंड ऑर्डर तक जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फाइनाइट प्रेसियन तो इसके लिए भी मौजूद है, इन सब के लिए फाइनाइट प्रेसियन जो है वो मौजूद है। सो व्हाट इज इट जो मैं
इस स्ट्रक्चर की तरफ ना जाऊं और इस स्ट्रक्चर की तरफ जाऊं, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए बेटा, यहाँ पे ये थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल है, ये थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आप मैक्सिमम सेकंड ऑर्डर के लिए जा रहे हैं। देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि मैं इस यहाँ पे 10th ऑर्डर पोलिनोमियल के लिए भी जा सकता हूँ। डायरेक्ट फॉर्म 2 मुझे अकोमोडेट करती है कि मैं यहाँ 10th ऑर्डर 100 ऑर्डर पोलिनोमियल भी हो मैं जा सकता हूँ, लेकिन कैस्केड स्ट्रक्चर फोर्स करता है मुझे कि मैं या तो सेकंड ऑर्डर में रहूं या फर्स्ट ऑर्डर में रहूं। मोटिवेशन क्या है? अगेन वही है कि फाइनाइट प्रिसिजन जो 100 ऑर्डर पोलिनोमियल में होंगे और जो इन चीजों को डिस्टर्ब कर रहे होंगे, उनकी वजह से जो पोल लोकेशन है वो डिस्टर्ब ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, देखिए -0.5 वाला जो पोल है, अगर फाइनाइट प्रिसिजन इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो जस्ट सिंगल यही पोल जो है ना अपनी लोकेशन स्लाइटली वो करेगा, चेंज करेगा, और हो सकता है ये पोल जो है ये -0.5 की बजाय -0.51 पे चला जाए या 0.501 या 0.52 पे चला जाए। लेकिन अगर मेरा पोलिनोमियल हायर डिग्री का है और इसी तरह का फाइनाइट प्रिसिजन इफेक्ट की वजह से मुझे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोएफिशिएंट्स में फर्क आता है, तो दैट कोएफिशिएंट्स विल बी अफेक्टिंग ऑल द 3 पोल्स। ये तमाम कोएफिशिएंट्स जो हैं तमाम पोल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ये डेविएशन या डिस्टर्बेंस जो है बढ़ती चली जाएगी जब मेरा नंबर ऑफ अपना जो ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल है वो बढ़ता चला जाएगा। सो वी आर सेइंग दैट थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स की डिस्टर्बेंस जो है वो 3 पोल्स को डिस्टर्ब कर रही होगी, जो सेकंड ऑर्डर कोएफिशिएंट्स की जो डिस्टर्बेंस है वो 2 पोल्स को डिस्टर्ब कर रही होगी, बट द डिस्टर्बेंस इन केस ऑफ 3 coefficients disturbance will be lesser as compared to the disturbance causing effect in the location of poles and zeros in the second order polynomial के coefficients की disturbance से। Have I answered your question, Meritaba? Yes, sir. Okay. Khokhar साहब, any question? Okay जी. Now this is my, so this was example. अच्छा, parallel structure जो है, again the motivation is same, that we want to decompose it into subsystems, and maximum subsystem जिसके लिए हम जाएंगे that would be the second order, and now you are quite aware of the motivation that why maximum second order, because इससे ऊपर हम नहीं जाना चाहते, और second order से भी हम जाना तो first order में चाह रहे थे, लेकिन second order इस वजह से to accommodate complex आपके जो पोल्स और जीरोस हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस इज कि आपके पास ये कैस्केड स्ट्रक्चर है, सो यू आर कैस्केडिंग, यू आर मल्टीप्लाइंग different subsystems to get this HFZ, whereas in parallel structures we are summing up all subsystems to get our HFC. So that's the only difference. So you will be using partial fractions, long divisions, and these kind of things to get these subsystems, and then we will be connecting all these in this pattern to get our parallel structure. So let's have an example, or probably this. Rather we should move here. Okay, now this is example. H of z is equal to 1 plus 2 z inverse plus z minus 2 and 1 minus 0.75 plus 0.125 z minus 2. That's my transfer function, and you can see कि आपके पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी आपके पास अगर degree of the polynomial is same, then you can use long division to get the constants out. So that's one way of doing it. आपने long division की and you have ended up with this expression. इसमें कोई confusion है तो please बोलिए. You have been doing it in chapter number 3, long division आप पहले देख चुके हैं. So it is 8 plus minus 7 plus 8 z inverse over 1 minus 0.575 z inverse, which is the same as the denominator in this first portion. So यहाँ पे कोई confusion है आपको? No, sir. Okay, so if I'm interested in making the parallel structure for this, how it will be?
इसको हम so that's the situation. एंड ये जो मेरा पोर्शन है ये मैंने 8 के लिए बनाया है ये लाइन, एंड दिस वन सेकंड ऑर्डर सबसेक्शन में बनाऊंगा 2 डिले एलिमेंट्स. Okay, so that's my x of n, y of n. Now I am assuming that I'm at this level 8, so that's your -7, 8. This is my z inverse. Okay, and that's 1, that's 0.75, and this one is minus 0.125. That's the structure, the parallel structure for this term. This can be further simplified. This portion can be further simplified because luckily we had real roots for these. So अगर इसके real roots हैं तो why not to go for the first order subsections. So in that case ये जो portion आपका रखा हुआ है इसको हमने further subdivide किया और अब हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया. पार्शियल फ्रैक्शन पहले रूट्स बना लिए और फिर उसके बाद उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर ली इस पोर्शन की, तो वी हैव एंडेड अप विद दिस थिंग. और इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास so that's my for 8. That's first order subsection, and then okay, so x of n, y of n, this is my 8, and then again this is 18 because I have to implement this pole. It is 1, 0.5 z inverse, and that's minus 25. That's 1 plus 0.25. That's the situation. So these are the arrows. जी जनाब, any confusions? सर ये जो आपने सबसे पहले जो फिगर बनाई है ये तो डायरेक्ट फॉर्म 2 की तरह होगी तकरीबन ऑलमोस्ट. बेटा जो भी कैस्केड में और पैरेलल स्ट्रक्चर में सब सेक्शंस हैं वो डायरेक्ट फॉर्म 2 में ही बनेंगे, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलेज के साथ हम चल रहे हैं. जो सब सेक्शंस हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्म 2 में ही हैं. जब हम बात करते हैं इस चीज की, देखिए जब मैं बात करता हूं दिस इज फॉर कैस्केड, आई एम मल्टीप्लाइंग ऑल दीज सब सेक्शंस. सपोज मेरे पास 10th ऑर्डर का एच एफ जी था तो आई विल बी मेकिंग इट 5 सेकेंड ऑर्डर सब सेक्शंस में. अगर मैंने उसे कन्वर्ट किया तो ऑल दीज एच के एफ जीज विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अपना DF2 के साथ. सेकेंड ऑर्डर और अगर फर्स्ट ऑर्डर भी थे तो भी
DF2 implementation होगी because DF2 gives us minimum number of delay elements. Have I answered your question? Yes, sir. Any other confusion question? सर वो ये पूछना था आपसे कि आपने जो फर्स्ट से सेकंड स्टेप में कन्वर्ट किया था उसमें आपने कहा था लॉन्ग डिवीजन करनी है, तो जो सेकंड से थर्ड स्टेप किया है इसमें भी लॉन्ग डिवीजन करनी है हमने? आप खुद देख लो यार, इसका इट हैज नथिंग टू डू विद डीएसपी, ये तो सिंपल फर्स्ट ईयर वाला मैथमेटिक्स है यार। इस पोर्शन को देख रहे हैं, ये जो इनसर्कल्ड पोर्शन है, सो इट इज -7 प्लस 8 z इनवर्स डिवाइडेड बाय, इस पोर्शन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 - 0.5 z इनवर्स and 1 - 0.25 z inverse, and then this will be written as a over 1 - 0.25 z inverse plus b over 1 - 0.25 z inverse, and then it is -7 plus 8 z inverse is equal to a into 1 - 0.25 जो भी है 1 - 0.5, ये 0.5 है, so 0.25 z inverse plus b into something, and then what is the value of z inverse, and you will be putting that and getting these values 18 and -25. Yes sir. So this has nothing to do with DSP. Just आपको पता है कि DSP आपसे चाह क्या रही है, इम्प्लीमेंटेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर में अगर आपने करनी है तो आप इसको मजीद ब्रेक कर सकते हैं, एंड दैट वाज ओनली पॉसिबल जब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है वो उसके रियल रूट्स में उसकी ब्रेकिंग अप हो सकती थी। इन दैट केस हम इसे मजीद सिंप्लीफाई कर पाए हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन था कि सेकंड में हम नीचे तक लेके आ रहे हैं उस रेक्टेंगल को, फर्स्ट में +8 जो है वो ऊपर तक है, सेकंड में नीचे तक आ रहा है, इसका क्या था? बेटा मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, जरा दोबारा रिपीट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड क्या चीज है, जरा दोबारा बताएंगे। राइट साइड पे आपने डायग्राम बनाई है, उसमें जो 8 है वो +8, वो उसका रेक्टेंगल नीचे तक आ रहा है, इसका मुझे समझ नहीं आई। उसमें तो +8 है, वो तो पता चल गया +8 है, वो ऊपर हम उसको एड अप कर रहे हैं, इंक्रीज होके ऊपर। बेटा तो सबसे पहली बात ये है कि ये एडर लगा हुआ है, इसको यूं समझे ये एडर लगा हुआ, तो ये एडिशन हो रही है। अब इन दोनों की भी तो एडिशन करनी थी ना, इनकी भी तो एडिशन करनी है, तो ये एक आर्म ये जा रही है, सो इनफैक्ट यूं समझ लें 3 आर्म्स हैं इस स्ट्रक्चर की, एक आर्म इसके लिए है, एक आर्म इसके लिए और एक आर्म इसके लिए, और फिर ये तीनों आर्म्स जो हैं ये एक एडर के अंदर जो है ना ये जा रही हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है, कोइंसिडेंटली पहला पोर्शन जो है उसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट है, दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एक डिले एलिमेंट है, तीसरा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर एक डिले एलिमेंट है। सो दिस इज अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग, ये पैरेलल स्ट्रक्चर इस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। पैरेलल है ना, तीनों चीजें जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, सम अप हो रही हैं। ठीक हो गया सर। ओके अच्छा जी, अब ये इफेक्ट्स ऑफ द क्वांटाइजेशन है, जरा इसको आप गौर से देख लीजिए कि हो क्या रहा है, ना सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में बल्कि मल्टीप्लिकेशन, और ये सिंपल आपके सामने एक सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर आपके सामने सिस्टम है, तो देखिए उसमें भी इफेक्ट्स कैसे आ रहे हैं। आपके पास यू स्टार्टेड विद XCFT वाज योर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, यू हैव सैंपल्ड इट और आपने x ऑफ n बना लिया, और उसके बाद आपने उसे सिंपल एक सिंगल डिले सिस्टम में से गुजारा, एंड दैट्स द कोएफिशिएंट a, और फिर उसके बाद आपने आउटपुट y ऑफ n ली, और y ऑफ n को रियल टाइम में लेके जाने के लिए आपने उसे डिस्क्रीट टू कंटिन्यूअस टाइम पोर्शन में से गुजारा, और यू हैव ऑब्टेन्ड दिस YCFT। अब देखिए एक एरर कहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही है। फर्स्ट लेवल ऑफ एरर इज कि देखिए आपने x ऑफ n जो आपने बनाया था, you cannot represent x of n as it was actually. There will be certain quantization errors. So x hat of n, which is the actual representation, and x of n, which was the actual calculation you had done. So इनके अंदर difference है.
and that difference is shown as this QBI. So that's the quantization error. Similarly, आपने delay में से गुजारा, you cannot represent this coefficient A. So this is not A now, this is A hat, and there is a difference between A and A hat. So another error has been introduced. अच्छा, इन दोनों को आपने add किया है and you have obtained V of n, but actually V of n जो है अब आपकी representation V of n की नहीं है, V hat of n की. Again you have introduced some error. So all these error because of the finite Precession effects जो हैं वो आपके पास आ रही हैं, और as a result of that you want कि आप अपना order जो है वो छोटे से छोटा रखिए, because ये जो इफेक्ट है वो सिर्फ उसी पोल और उसी जीरो तक महदूद रहे, ये ना हो कि उसका इफेक्ट जो है वो एनलार्ज हो जाए, क्योंकि अगर कोएफिशिएंट्स बढ़ते चले जाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जाएगा. सो दैट वाज द इफेक्ट्स ऑफ क्वांटाइजेशन एरर्स. अच्छा, अब यहाँ पे अब हम इसको अगर एग्जांपल देखें इसकी. अच्छा, Hamza Mubashir, this is the specification for some filter. Can you tell us which type of filter is this? So band pass filter. Why band pass filter? So 0.29 pi से कम और 41 पाई से ज़्यादा पे -40 dB की अटेनुएशन हो रही है, और बाकी 0.3 से 0.4 पाई तक वो मेंटेन कर रहा है. ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच बेटा. सो दैट्स, अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो क्या सिचुएशन है, 0.3 पाई और 0.4 पाई के दरमियान लीनियर स्केल पे इट इज़ 1.01 और 0.99 के दरमियान में है. सो सपोज करते हैं दिस इज सॉरी suppose this is 1.01 and this is 0.99. so that's the game. ये जो situation है मेरे पास, ये 0.3 पाई है, suppose this is 0.4 पाई, और उसके बाद इससे नीचे और इससे ऊपर पाई तक ये सिचुएशन है. सो ये मेरे पास जो है लीनियर स्केल पे दिस इज 1.1 और 1.01 और 0.99 के दरमियान में है, रिक्वायरमेंट है, और ये कहता है कि ये लेसर देन 0.01 है इन फ्रीक्वेंसी. 0 से लेके 0.29 पाई तक जो है 0.01 से नीचे है, और 0.4 पाई से ऑनवर्ड्स जो है पाई तक दैट इज 0.01 से नीचे अटेन्युएशन है. सो इस बात का मतलब हुआ दिस इज अ बैंड पास फिल्टर. सो इट्स द फिल्टर इज अलाउइंग a certain band of frequencies, and those certain bands of frequencies are 0.31, 0.32, 0.33. These are the frequencies up to 0.4 pi. ये यहाँ तक इनको गुजरने दे रहा है, बाकी तमाम frequencies को ये attenuate करा रहा है. So this is my band pass filter. अच्छा जी, somebody came to you and said these are my specifications, और जी मुझे फिल्टर बना के दीजिए. आपने जनाब एक 12th ऑर्डर एलिप्टिकल फिल्टर बनाया. डोंट वरी अबाउट दैट कि ये एलिप्टिकल क्या है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन चैप्टर नंबर 7, द नेक्स्ट चैप्टर इन डिजाइन ऑफ द फिल्टर्स. बट आपने ये 12th ऑर्डर का फिल्टर बनाया, एंड दीज आर द कोएफिशिएंट्स. IR फिल्टर है तो ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन के. जब आप लिखते हैं h of z इज इक्वल टू a1 plus a0 a1 k plus a2 a1 k z inverse a2 k z minus 2 something like that. तो ये आपके पास चीजें जो हैं, ये कोएफिशिएंट्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, a1 के a2 के b0 के b1 के b2 के, ये कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास, एंड 12th ऑर्डर क्योंकि फिल्टर है. चलें, अब आपने इनको रिप्रेजेंट करना है. जब आप इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो यू नो दैट देयर आर सर्टेन क्वांटाइजेशन इफेक्ट्स. अच्छा, ये अनक्वांटाइज्ड आपके पास रखे हुए हैं. यू वांट कि आप जो भी वैल्यू अपीयर हो रही है इसी तरह से ही आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते, तो क्या हालात होते. अच्छा, अब देखिए ये अनक्वांटाइज्ड के साथ ये हालात है. ये आपका अनक्वांटाइज्ड है, और अगर आप देखें तो ये 0 dB पे विच इज बिटवीन 1 है, और -40 dB से नीचे है for the values greater than 0.4 pi and lesser than 0.3 pi. ये -40 dB से नीचे है.
ठीक, यहाँ पे लीनियर स्केल में मैग्नीफाई करके दिखाया गया है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगेन आप यहाँ पे नजर आ रहा है इसी चीज को, इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया गया है। ये आप देखिए 1.01 और 0.99 के दरमियान में है, विच इज द रिक्वायरमेंट। ये पास बैंड है आपका, ठीक है, सिर्फ इस पोर्शन को मैग्नीफाई किया गया है एंड जस्ट शोइंग द रिक्वायरमेंट्स के ये 1.01 और 0.99 के बीच में है। इफ अब जो चीजें हैं वो सारी अनक्वांटाइज्ड हैं तो अच्छा, इस केस में भी देखिए, अब मुझे ये भूल गया है कि प्रोबेबली ये 16, ये अनक्वांटाइज्ड था, ये 16 बिट के साथ है, ये प्रोबेबली 13 बिट के साथ है। बुक के साथ देख लीजिएगा, फिगर के साथ वो लिखा हुआ होगा, मैं उसको लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ। प्रोबेबली दिस इज फॉर 13 बिट के साथ रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आप ये देखिए कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी अब आप उससे एक्सीड कर रहे हैं, 1.01 से ऊपर जा रहा है आपका, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली जब आप इधर आते हैं तो अब आप देखिए ये प्रोबेबली 8 बिट्स के साथ है। सो देखिए आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो थी वो 0 dB थी 0.3 पाई और 0.4 पाई के दरमियान, बट क्योंकि क्वांटाइजेशन नॉइज की वजह से क्या हुआ कि अब आप इवन द पास बैंड जो है वो भी अटेन्यूएट होना शुरू हो गया है। ये तो -40 dB के दरमियान रहा, लेकिन अगर आप इस जोन को देखें तो ये देखिए तो ये -20 dB की रेंज में पहुंच रहा है। इसको नहीं होना चाहिए था, ये चीज जो है वो इधर आ रही है। सो इसने अटेन्यूएट कराना शुरू कर दिया उन फ्रीक्वेंसीज को जिनको हम पास करना चाह रहे थे। सो दीज आर द इफेक्ट्स व्हिच कम व्हेन द क्वांटाइजेशन जो है वो इस तरह से आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को जो है वो इफेक्ट करती है। जी, एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? तो ये जिसमें 1.01 से ऊपर एम्पलीट्यूड गई है वो क्यों गई है? बेटा नंबर ऑफ बिट्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे पास इस वक्त बुक नहीं है, अदरवाइज मैं देख लेता। प्रोबेबली ये अनक्वांटाइज्ड था या 16 बिट के साथ था। दिस इज अनक्वांटाइज्ड, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्रिसीजन आपके पास मौजूद थी, तो दैट वाज द सिचुएशन। ये मेरा ख्याल है 16 बिट के साथ था और ये 13 बिट के साथ था, 13 बिट रिप्रेजेंटेशन थी, एंड प्रोबेबली दैट वाज 8 बिट एंड दैट वाज आइडियल, वो जो आपका नजर आ रहा है, जस्ट टू हैव अ कंपैरिजन। सर ये 8 बिट क्वांटाइज्ड 13 बिट क्वांटाइज्ड, इसका मतलब समझा दें कि मतलब हम बिट्स लगा के जो एक्सप्लेन करें। मेरा बच्चा, अगर फर्ज किया आप क्वांटाइजर, बहरहाल डीएसपी का टॉपिक तो नहीं है, क्या करें आप? अच्छा, कम्युनिकेशन में नहीं पढ़ा क्वांटाइजर? नहीं सर, अभी तक नहीं पढ़ा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बहरहाल इसका टॉपिक तो नहीं है, सपोज कर लेते हैं। अच्छा, नाउ ये है जी सिचुएशन, सपोज आपके पास, ये मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है, मुझे इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, बिट्स में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि आप इनको सपोज सैंपल करेंगे, सैम्पलिंग तो आपने पढ़ रखी है ना? यस सर। ओके, सो दीज आर माय सैंपल्स। ओके, इन सैंपल्स को अब आपने कुछ बिट्स की वैल्यू देनी है। मैं कहता हूं अगर मैं 16 बिट का क्वांटाइजर यूज करता हूं तो कितने लेवल्स होंगे उसके अंदर? 2⁻16 लेवल्स होंगे। अगर मैं 4 बिट का क्वांटाइजर यूज करता हूं तो मेरे पास कितने लेवल्स होंगे? 16 लेवल्स होंगे। सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इसमें मतलब आई शुड बी इवन, 0 लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो ये मेरे 16 लेवल्स है, मैं 4 बिट का क्वांटाइजर यूज कर रहा हूँ। सो इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0 0 टू 1 1 1 1। अब अकॉर्डिंग टू दिस, अब सपोज ये वैल्यू थी, कुछ भी वैल्यू थी, तो यहाँ पे हमने इस सैंपल को कुछ क्वांटाइजेशन लेवल अलॉट किया है। अब ये कुछ एरर मौजूद है इसके अंदर, अगर आप गौर से देखें तो एक्चुअली सैंपल ना इस क्वांटाइजेशन लेवल पे बैठा हुआ था ना इस क्वांटाइजेशन लेवल पे बैठा हुआ था। सो देयर वाज सर्टेन एरर एसोसिएटेड विद दिस। हमजा मुबशिर, हाँ ना तो करें।
यस सर, यस सर। आप ही के लिए कर रहा हूं तो आप हाँ ना तो आप करते जाए ना। नहीं सर, मैंने कहा आपको इंटरप्ट ना करूं। ना ना करते जाए, मैं इंटरप्शन से बहुत खुश होता हूँ। ठीक है, तो यस सर। ये क्वांटाइजेशन एरर है। अगर तो मैं 2 raised to power 16 क्वांटाइजेशन लेवल यूज कर रहा होता तो मेरे पास ऑफ कोर्स नंबर ऑफ कितने हो जाते वो 2 raised to power 16 आई डोंट नो 1056 प्रोबेबली, जो भी है, तो वो मेरे पास क्वांटाइजेशन लेवल होते, तो ये क्वांटाइजेशन एरर जो है फिर क्वांटाइजेशन लेवल ज्यादा करीब करीब होते। यस सर। तो उस केस में मेरे इस सैंपल के लिए जो मैं अलॉट कर रहा होता इसको 16 बिट्स, तो मेरी क्वांटाइजेशन एरर जो है वो कम होती एज कंपेयर टू माय क्वांटाइजेशन लेवल इन केस ऑफ दिस 16 बिट 4 बिट क्वांटाइजेशन। यस सर। ठीक है, सो दैट्स द क्वांटाइजेशन जो है, हम इसको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 8 बिट क्वांटाइजेशन यूज हो रही है या 13 बिट है या 16 बिट है। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इफ यू हैव Yes, sir. some Understood, sir. okay, great. Now we are moving towards FIR filter structures. अच्छा, FIR filters में क्या है जनाब? क्योंकि जीरोस नहीं है, सॉरी सिर्फ जीरोस हैं और पोल्स जो हैं वो यूनिट सर्कल पे हैं। सो अगर आप इसको देखें तो आपके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है। HFZ is in this form. So there are two ways to implement this. One way is the tap delay line structure and second is transversal filter structure, और इस केस में DF1 और DF2 दोनों बराबर होते हैं because you don't have poles, तो आप उसे किसी भी तरीके से आप इंप्लीमेंट करें, नंबर ऑफ डिलेज जो है आप रिड्यूस नहीं कर सकते। सो DF1 एंड DF2 विल बी सिमिलर इन FIR filter structures. So tap delay line structure क्या है? So this is my transfer function. Suppose 1 plus 2z inverse plus 3z minus 2 plus 4z minus 3 plus 5z minus 4, और इस केस में अगर मैं इसका टैप डिले लाइन स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूं तो एक डिले लाइन है x of n और y of n के दरमियान। इस नोड पे मुझे x of n मिल रहा है, मैं इसे एक डिले एलिमेंट में से गुजारता हूं तो इस पे मुझे x of n minus 1 मिल रहा है, मैं इसे एक डिले एलिमेंट में से गुजारता हूं तो मुझे यहाँ पे x of n minus 2 मिल रहा है, मुझे x of n minus 3 मिल रहा है और यहाँ पे मुझे x of n minus 4 मिल रहा है। दैट्स माय डिले लाइन। अच्छा, अब मुझे इसको गौर से अगर मैं देखूं तो व्हाट इज दिस? अगर मैं इसकी डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो आप क्या होगा? y of n will be equal to x of n plus 2x of n minus 1 plus 3x of n minus 2 plus 4x of n minus 3 plus 5x of n minus 4. So y of n के लिए मुझे क्या चाहिए? Sorry, it is not y of n here. So क्या चाहिए मुझे? 1 के साथ x of n मल्टीप्लाई हुआ है, 2 के साथ x of n minus 1 मल्टीप्लाई हुआ है, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ x of n minus 2, 4 के साथ x of n minus 3, 5 के साथ x of n minus 4, and all these terms are being added and you are getting your y of n. So that's called tap delay line structure. There was a delay line and you are getting taps from this delay line and adding it to get this structure, tap delay line structure for this transfer function. Yes, और ट्रांसवर्सल फिल्टर स्ट्रक्चर जो है वो अगेन आपका DF1 या DF2 जो है उसको हम ट्रांसवर्सल फिल्टर स्ट्रक्चर कहते हैं। किस तरह की चीज़ है? सपोज इसी का ही अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना है तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट कि आपके पास so that's my 1,
3, that's 4 and that's 4. अब अगर आप इसका डायरेक्ट फॉर्म 2 बनाना चाहें तो डिले एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, बट इट डजंट, बल्कि इधर ही रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. इट्स द सेम एज डायरेक्ट फॉर्म 1 एंड डायरेक्ट फॉर्म 2. जी, एनी कंफ्यूजन्स, any questions regarding FIR filter structures? No sir. सर पहले मेथड का नाम क्या बताया था आपने? टैप्स, टैप डिले लाइन, ये लिखा हुआ है बेटा. ये एक डिले लाइन है ना, वहां से टैप कर रहे हैं. सही हो. जो DF1 स्ट्रक्चर है इसके अंदर सर आप ये डिले की पावर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, z की पावर -2 -3, ये 1 ही नहीं रहेगी सर? Oh, sorry. Thank you, beta. Thank you very much. Absolutely. Thank you. Thank you very much. Because we are generating, यहाँ पे x of n -1 है, यहाँ पे x of n -2 है, x of n -3 है, and here we have x of n -1. ठीक हो गई बात, चलें आगे. यस सर. ओके, सो अगर कैस्केड स्ट्रक्चर है FIR में, सो सपोज यू हैव अ 10th ऑर्डर फिल्टर, तो 10th ऑर्डर को आप 5 सेकंड ऑर्डर सबसेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, और अगर तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, और 10 फर्स्ट ऑर्डर सबसेक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सारे के सारे रियल रूट्स हैं. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वही रहेगा. अब हम आते हैं अपने लीनियर फेज फिल्टर स्ट्रक्चर्स की तरफ. सर 2 मिनट की ब्रेक कर लें इससे पहले. चलें, कर लें.